हाँ?
Zodat Talioja for all our guests present here. Wonderful day today.
वैसे I am the only, I think I am the only Bollywood patient of Dr. Banawali. उनके लिए तालियां. No, it's just whenever you come here, what you see is only positivity. आप सिर्फ पॉजिटिविटी देखते हो, laughter, joy, celebration. इससे ना दवाई का असर ना 4 डबल हो जाता है. And that's what we need. That's it. Thank you so much. I'm gonna. Young Dr. Tushar invited me up on this stage. He still looks the same age. We made the commitment that we will actually house and give loving care to all the children who are suffering from cancer coming in from outside Bombay after the new Cotton Green campus has been opened. And that is wonderful. So thank you very much. And we have Aditya with us. For me, it's my first year here, and I already feel like I'm going to be coming back many times over. I'm not sure, there's a lot of positivity in the air, and without hope, there's nothing in life. Not everyone's journey is spectacular. Everyone has ups and downs, and if you don't have hope, you won't go forward, and you won't overcome all the obstacles that life always throws every one of us. So I'm more than happy and honored to be here, and I'll see you again next year for sure. request that you please come on the stage. इस पूरे देश में जितने बच्चे हैं उन सबको वो सब मिलना चाहिए जो हम सब पैदा होकर जी बनना और बेसिक पढ़ाई कर कर कुछ बनना है और ये एक छोटी सी होप है. Thank you. Ankita, again, for you the journey has been spectacular. One thing, they all children are fighters and I love the performance and God bless you all and God bless you. Love you all. Thank you so much. Thank you so much. Tata Memorial Hospital has been like a family to me and my association goes very, very far back. But I have to say that the dedication of the doctors and the staff here is just amazing. Especially Dr. Tushar there. He reminds me of Amir Khan from Tare Zameen Par. He's the child with the children and that's why you see that how much the kids in the pediatric ward love him. So I think always remain that way, Tushar, and I think once you put that smile on all their faces and they feel better immediately. So I think that's the special thing about Tata Memorial and we are always there for you. Thank you so much. मैं चाहूँगा कि जिस एनर्जी के साथ मैंने यहाँ पे बच्चों के परफॉर्मेंस देखे और यही एनर्जी रहे. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. I'm also यहाँ पर and चाहे हवा हवाई हो चाहे आपकी फोर्थकमिंग मूवी हो बच्चे ही आपके मूवीज के हमेशा फोकस रहे हैं. स्टैनली का डब्बा, so many movies. What inspires you from these kids? And you've seen them, these kids. अब तो आते हैं यहाँ पर. Something that you would like to share. RJ Rahul ना. नाम तो सुना होगा. डायलॉग जो शुरू करता है. नाम सुना है RJ Rahul. ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये मेरी फैमिली है. इसलिए मैं चुपचाप बैठ गया था उधर. खामोगा खींच के लाया मेरे को. वैसे मैं उनके साथ हूँ तो फिर उनको भी बुलाओ फिर इनको भी बुलाओ. वो तो आएंगे अभी आदित्य के साथ नाचने. लेकिन बहुत प्यार. कुछ लोग मिसिंग है. हर साल याद करूँगा निरंजन भाई को और हर साल याद करूँगा डॉक्टर तस्मिया शेख को. लेकिन विक्ट्री तो विक्ट्री होती है भाई. टू ऑल द विक्टर्स.
very much. Thank you so much, Wally. बहुत ही सच्चाई का सामना है। बच्चे मन के सच्चे अगर आप कहते हैं तो जो बच्चों का डांस परफॉर्मेंस और उसमें जो प्योरिटी देखने मिली बहुत कम देखने मिलती है। तो यहाँ पे जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे उनकी एनर्जी लेवल, उनका डांस और उनके अंदर एक जो अलग प्रेरणा थी वो मुझे देखने मिली। मैं बहुत सबसे पहले धन्यवाद कहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया और ये चीज़ बच्चों का परफॉर्मेंस देखने मिला। कहीं ना कहीं जो हम ओरिजिनल एंटरटेनमेंट देखते हैं बड़े पर्दे पर और जो इमोशंस देखते हैं वो कहीं ना कहीं आज रियल में देखने मिला है आपको, अगर जानना चाहेंगे? ऑफ कोर्स रियल में ही है। मतलब अगर आप देखोगे बच्चों का परफॉर्मेंस और उनको पता ही नहीं है उन लोग किस स्टेज पे और उन लोग का जो डांस है, उनकी जो एनर्जी है और जो सच्चाई से कर रहे हैं वो इमोशन से बहुत ऊपर है। तो गॉड ब्लेस फ्रॉम बच्चे। ये फाउंडेशन से आई थिंक हम मेरी मम्मी के टाइम से, जब मेरी माँ गुजर गई थी तब से आई थिंक हमारे रिलेशनशिप टाटा मेमोरियल के साथ रहे हैं। और सो 1981 से जी, तो यहाँ बहुत काम मेरे पिताजी के साथ हुआ। हमारा नरगिस दत्त फाउंडेशन जो है, तो उस समय जो टाटा मेमोरियल का आईसीयू है वहाँ डोनेशन हमने किया और इसके बाद हम पहले से जुड़े हैं। अब नरगिस दत्त फाउंडेशन अब भी जुड़ी है टाटा के साथ। कैंसर पेशेंट के फाउंडेशन देखा है तो बहुत जगह अलग अलग तरह, इसमें ऐसी क्या खास बात है और कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है कैंसर पेशेंट को लेकर? और टाटा मेमोरियल एक जैसे हब है जहाँ हमारे देश से हर कोने से लोग यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और ये प्रूव करता है कि टाटा मेमोरियल एक बहुत बेहतरीन और हॉस्पिटल है इनके डॉक्टर्स के वजह से, क्योंकि जिस जैसे ट्रीटमेंट यहाँ उनको मिलती है और इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है। अगर आप हॉस्पिटल भी जाके देखो, क्राउड बहुत ज़्यादा है लेकिन ट्रीटमेंट में कभी कुछ कमी नहीं रहती। तो और जब पीडियाट्रिक भी आप देखें और आप डॉक्टर्स को देखें, उनके डेडिकेशन को देखें, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स फॉर कैंसर। गणेश सर, आपसे एक टॉपिक पे रिएक्शन चाहिए। अभी बहुत सारे छोटे शहर से कलाकार आते हैं या छोटे शहरों में शूटिंग होती है फिल्मों की या बिजनेस भी। गवर्नमेंट ने 2 करोड़ सब्सिडी दिया फिल्म मेकर्स को, क्योंकि आप भी फिल्म इंडस्ट्री कर चुके हैं। तो ये बताइए कि जो सब्सिडी देना कितना अच्छा होता है, कितना पॉजिटिव स्टेप है वो भी छोटे शहर में झारखंड जैसे? नहीं, पॉजिटिव स्टेप है। इससे हमको बहुत सहारा मिलता है। जो हमारे टेक्नीशियंस हैं उनको बहुत सहारा मिलता है। ये चीज़ होना चाहिए। मैं सिर्फ झारखंड नहीं, हर जगह, बाहर से भी हमको मिलती सब्सिडी, महाराष्ट्र से भी मिलती, बहुत सी जगह से। तो ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप है। ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो इन्होंने एक सबको लगता है ट्रीटमेंट हेल्प देने के फाइनेंशियल हेल्प, तो हम लोग पहले स्टार्ट किए तो सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प देने के, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प, पैसे का हेल्प देने के बाद भी 25% पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट ख़त्म करने के पहले ही जाते थे। तो हमने देखा कि फाइनेंशियल हेल्प तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट लेने के लिए, लेकिन उसके साथ में रहने के लिए, खाने के लिए जो मदद करते हैं, और सबसे बड़ी इमोशनल मदद जो है, जो अभी आज आप देख रहे हैं, ये इमोशनल मदद हो जाती है, इमोशनल जो हेल्प बोलते हैं। तो वो भी लगता है क्योंकि 7-8 महीने पेशेंट को बम्बई में रहना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, तो विदाउट ये सपोर्ट, विदाउट ये एनर्जी आप पूरे साल नहीं निकाल सकते। तो ये जो हम होप करते हैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमारे पूरे टीम के लिए करते हैं कि सबको हमको एनर्जी मिलती है कि आगे पूरा साल ये एनर्जी लेके हम पूरा साल ट्रीटमेंट चलाते हैं और वही एनर्जी लेके वापस आते हैं आपके पास और फिर से आपसे हेल्प लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। काफ़ी जन पूछे कि फिल्म इंडस्ट्री कैंसर पे पिक्चर नहीं बनाते, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं रेसिडेंट था ये हॉस्पिटल में, दर्द का रिश्ता जो सुंदर साहब ने बनाई थी वो कैंसर पेशेंट पे थी, और कैंसर पे थी तो आई थिंक वो भी पिक्चरें बनती और बननी चाहिए और बननी चाहिए। लेकिन इन्होंने कई साल पहले ये किया था और उनका हेल्प पूरा नरगिस दत्त फाउंडेशन का हेल्प में काफ़ी मिलता है ये काम करने। So Priyana, you and the government to come up with some of the more influential programs? Of course, I think it's really important for the government to take notice of it. A lot of work, social work that is being done through organizations, through NGOs or through foundations and through trusts. But I think a lot of from the
right here. Thank you so much, Adi. मुझे लगता है यहाँ पर सारी लड़कियाँ आपकी दीवानी हो चुकी हैं. मेरी co-host भी आपकी दीवानी हो. Right here and one selfie together. Some cheer. 3, 2, 1, yo! Thank you so much. Wow. अच्छा डॉक्टर साहब खाना दिए Which is that thing what prompted you to just come up to get associated with this initiative? Honestly, we are not as busy as we seem. So it was not a very big thing. For me, this is my first time here. And I think Varun had come here the last time, and he had put me on to this event, and he said that asked me if I had time, and I was more than happy to do it. And after coming here, I feel like I would love to come and be a part of this every year, because if in our small way we can contribute to making someone else's day better, and who are going through troubles that are harder and harsher than we face in our lives, and it's a very small thing for us to do. And apart from that, it's a selfish thing, because I feel more positivity, I feel happier. They've brought happiness into my day, into my life, and into my way of looking at things. So we're not that busy. This is a very small thing for us to do, to contribute. So I think Amol gives more time. I really amazed. I miss one of the because 10 साल हो गए. I think I've attended 6. I don't know. I don't remember. But हाँ मैं पिछले साल, लेकिन क्या होता है नहीं हो पाता every time. But I try to be here, celebrate, and so the doctors and the pediatric ward and everybody is like a family, all of them, all the staff they are saying. अनुराग सर, एक कॉमन रिएक्शन लेना एक सब्जेक्ट को लेकर, आपने इतनी सफल फिल्म सब्सिडी जो होता है, झारखंड गवर्नमेंट ने 2 करोड़ की सब्सिडी दी है, वहाँ फिल्म मेकर्स आए, फिल्में बनाए, वैसे रिमोट जगह में, तो क्या कहना चाहेंगे, प्रोत्साहन में कुछ बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट को, झारखंड गवर्नमेंट को, सकता है कैमरा लोग? नहीं, ये तो हमेशा अच्छा होता है यार, कई बार कई कहानियाँ होती है जिसमें आई थिंक ये हर एक स्टेट को करना चाहिए, और झारखंड और छत्तीसगढ़ भी कर रहा है, और मध्य प्रदेश तो 3-4 साल से कर रहा है. और आप देखते हैं मध्य प्रदेश इज द बिगेस्ट एग्जांपल. जब से उन्होंने शुरू किया है, किस तरह से मध्य प्रदेश में शूटिंगें शुरू हुई हैं. मध्य प्रदेश में शूटिंगें होती नहीं थी. प्रकाश बाबू ने 4 पिक्चरें वहाँ बना ली हैं, एक के बाद एक, और भी मेकर्स गए हैं, और वहाँ से उनके टूरिज़्म, मध्य प्रदेश में टूरिज़्म पहले टूरिज़्म मैप में था ही नहीं मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के. अभी देखिए कहाँ पहुँच गया मध्य प्रदेश टूरिज़्म में. तो फ़र्क फिल्म वालों को भी होता है, स्टेट को भी होता है, टूरिज़्म को भी होता है. विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी. तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. और झारखंड में इतने अच्छे, और झारखंड में दुमका इलाके में चले जाए, हजारीबाग से अंदर चले जाए, इतने खूबसूरत जगह हैं. तो आई थिंक इट्स डिलाइट. I'm not very well versed with this subject, so I don't know if I can comment anyway. But I think it makes common sense. Film subsidy means you can go there and you have a subsidy of 2 crore rupees in Jharkhand. Your brother is one of the foremost producers of Bollywood. So उनको काफी help मिलेगी. But if everyone is benefiting from it, and the state is benefiting, the filmmakers are benefiting, and it's doing good, then there's all positivity. Then I don't see any reason why it's a wrong thing. और क्या थोड़ा सा झारखंड ना लोगों के दिमाग में ये रहता है, झारखंड छत्तीसगढ़ को लेकर कि यार वहाँ पे, तो ये दिस इज द परसेप्शन. एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी वो नहीं है. वो परसेप्शन को भी क्लियर करने के आई थिंक इज अ वेरी गुड स्टेप, यू नो, दैट थिंग. नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जितना भारत दिखे अपनी फिल्मों में, अच्छा. और अभी क्या है, सब्सिडी तो वहाँ से भी आती है, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो पता नहीं सब्सिडी टटोलने के लिए जा रहे हैं या पिक्चर बनाने के जा रहे हैं. तो बात सब्सिडी की होनी नहीं चाहिए. अपने हिसाब से और अपने ताकत से अपना भारत दिखाओ. और इतनी खूबसूरत जगह है भारत देश में, वो अगर पहुंचाएं तो हम भारतीय कहलाएंगे, फिर क्या. ऐसा नहीं. अच्छी एक्चुअली डर जो बात है, डॉक्टर बनावली आ गए हैं, और इनका डर ये होता है कि बॉलीवुड ने सबसे बड़ा नुकसान जो किया है कैंसर के क्षेत्र में, उसको ऐसी जानलेवा बीमारी दिखा दिया है, और फिर उसको निचोड़ते हो, जैसे अपने रियलिटी शोज होते हैं, वो आंसुओं से जीतते हैं,
और अवार्ड से नहीं जीतते, मतलब मार पड़ी, बच्चा रो पड़ा, लोग। सर मैं भी रोया था 3-4 हफ्ते पहले, समझ लो आता है रोना, क्या करें। पर बात यह है कि बेटर टू शो कैंसर। हम यहाँ बैठते हैं पिछले 8-9 साल से, तो मैं हर साल कितनी मरतबा यहाँ रहता हूँ, जब विक्टर्स की एनर्जी, ऊर्जा देखते हैं हम, तो इतना बेनिफिट होता है। तो अगर सेल्फिश आदमी है अगर कोई इस दुनिया में, तो वो यहाँ आकर बैठे और यहाँ से ऊर्जा ले, यहाँ से एनर्जी ले, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा जो है, कल हो ना हो या ये हो या वो हो, वो हमेशा ऐसा कहते हैं कि भाई इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कैसे कुछ नहीं है यार, कैंसर इज क्योरेबल। तो ये बात बॉलीवुड अगर पहुंचा दे भारत देश में, तो जो काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जो तुषार, डॉक्टर कुरकुरे, मैं इनके साथ इतना मिल घुल गया हूँ, क्योंकि ये कमाल के, ये भगवान अगर धरती पे है तो ये है। सही बात। आदित्य, आपने डांस, मैं जैसे मैं पहले कह रहा था कि बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। आई फील है कि मुझे वापस भी आना है, आई वांट टू कम बैक ईयर आफ्टर ईयर, क्योंकि बच्चों से इतना पॉजिटिविटी मिलती है। आई फील लाइक आई एम गोइंग अवे अ हैप्पियर पर्सन एंड आई एम लुकिंग एट माय प्रॉब्लम्स इन अ मोर पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वे। तो आई हैड अ ग्रेट टाइम। बचपन में जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते थे और यहाँ के डॉक्टर्स को देख के कुछ परसेप्शन आपका बदला है कि डॉक्टर्स सुई लगा देंगे, जो डर बैठा रहता था यहाँ के डॉक्टर्स को देख? मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं। आई थिंक आई हैव ग्रोन अप अ व्हाइल अगो, तो वैसे ही। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज 2 है, राइटर है, एक्टर, हीरो है, हीरोइन थी, सब लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर थे, सब लोग हैं, तो इन्होंने एक पिक्चर बनानी चाहिए कि नहीं? क्या होता है, मैं बोलता हूँ आपको, जो पिक्चर इन लोग, अगर कोई हीरो को मारना है, हीरोइन को मारना है, तो या किसी को मारना है, तो उसको कैंसर होता है। सही बात है। डॉक्टर बड़ा उदास होके बाहर आता है, सर झुका के, ऐसे चश्मा निकाल के बोलता है सॉरी टू। हाँ, सॉरी टू। देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो आई थिंक आई विल रिक्वेस्ट कि एक अच्छी पिक्चर बनाए। अच्छी पिक्चर बना रहे आप लोग, लेकिन और हमारे लिए बनाए कि अवेयरनेस क्रिएट हो। और एक बात क्या है मालूम, लोग ना ये पता नहीं क्यों, मैं कई दोस्तों को जानता हूँ, डॉक्टर साहब के पास भी कई लोग, मैं सर फलां एक्टर हैं, उनकी माँ, छुपाते पड़े हैं। छुपाना जो है ना, छुपाने से अवेयरनेस को आप दबा रहे, बल्कि आप बताएं लोगों को, यार ये मुझे हुआ है, इससे आप 4 लोगों को बताएंगे, फिर वो और 4 लोगों को बताएंगे, फिर then you are become okay. This is, people have this tendency, celebrity especially, to hide their this is डॉक्टर साहब ने तभी वहाँ पे बोला था कि मैं डॉक्टर का कभी नंबर छोड़ के, यानी अपना नंबर छोड़ के आगे नहीं आए कि मुझे पहले लोग, क्योंकि ये बाहर 2 घंटा भी वेट करते थे, क्योंकि बच्चों का एनर्जी देखते थे, जो ट्रीटमेंट में बच्चे खुश है ये, तो आई थिंक वो एनर्जी इनकी बैटरी भी चार्ज करती है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब बच्चे, सब कैंसर पेशेंट पूरे ऐसे थकावट से ऐसे नहीं रहते, उनके पास भी एनर्जी है, आपने देखा वो एनर्जी। और सर को सबका नाम याद रहता, कैसे रहता पता नहीं, सबका नाम रहता। हाँ, ईयर आफ्टर ये कट के बाद आज फिल्म के बारे में। यस, एग्जैक्टली, एवरी डे, वेरी बोरिंग, नहीं, द ओनली कमेंट इज वेरी हैप्पी दैट सो फार पीपल आर एक्सेप्टिंग, लाइकिंग द सॉन्ग, जस्ट होप इट कीप्स गोइंग। अनुराग सर, जैसे अभी आपने कहा कि आपने पोलियो को बहुत ऐड किए, उनका बहुत साथ दिया, उस तरह आपको नहीं लगता कैंसर को भी लेके बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आगे आना चाहिए, कोई ऐड फिल्म बनानी चाहिए? नहीं, कर तो रहे लोग, कई लोग अपने कैपेसिटी में कर रहे हैं। हाँ, लेकिन और करना चाहिए, जितना करना चाहिए उतना तो 10% ही है, मतलब 90% कैन बी डन। तो हर जगह होता है, हम सबको लगता है, क्या होता है, हम लोग सब, मैं भी ये नहीं बोलूँगा कि आई एम जस्ट whatever I'm capable of, I'm giving everything, I'm not doing everything. अब मतलब क्या होता है, अब अपने कैरियर सब करते पुराते, सो आई थिंक हाँ वो तो है, करना चाहिए, बहुत किया जा सकता है इस फील्ड पे। तो क्योंकि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को लगता है मुझे तो नहीं होगा यार, उसको हो गया, सबको लगता है मुझे नहीं होगा, everybody thinks that this is not right, this is not going to happen, it's not going to happen to me, और सबको ये लगता है कि अगर लोग आते ही नहीं, मेमोग्राफी कराने के पता लग गया तो तब क्या होगा, ये अजीब साइकोलॉजी है, if they catch it then, so I have done it in camps, this is what people think, so this is awareness very important. नाम लेना चाहिए? नहीं, I'm saying जो लोग camps वगैरह किए हैं तब। So Anurag, do you think that the pressure of box office collection is the reason why Bollywood movies are not made, especially on the social causes like? See, मालूम Bollywood by itself ना, Bollywood by genre escapism है, वो उस दिशा में ही सारे फिल्में बनाते हैं। So do you think the box office collection is the
the main reason is the pressure. Because of that, movies are not made on like social causes like cancer. नहीं, अमोल इज द बिगेस्ट एग्जांपल यार. ही हैज गिवन सोशल कॉज से फिल्में बनाए, फिल्में चली भी हैं. और सब में वो बोन होना चाहिए ना, अंदर से, आपके अंदर से बात आनी चाहिए. मतलब यू नो यू शुड बी सोशली अवेयर फ्रॉम विद इन. You cannot do it just for sake of sake of it, because every filmmaker makes a film something which is close to their heart, something which they can relate to, and it should be close to his personality. With अंदर से आना चाहिए. We'll take one last question, please. अनुराग सर, मतलब फाइनली आपकी मूवी आ रही है जग्गा जासूस. मैंने सुना है रणवीर कपूर ने कहा है 6 months में प्रमोशन चालू होने वाला है. तो 6 months में चालू होगा. रिलीज के बाद कैसे रिलीज अप्रैल में रिलीज होगी. अप्रैल में तो प्रमोशंस और कुछ भी यार कुछ सोनी सुपर्ब यार. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू फॉर हैविंग मी. आप लोग भी थोड़े पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें. अच्छा तो ज्यादा वहाँ पे खर्चा करते Thank you so much. अरे अनिल देरी कर ले भाई, बाहर अरे क्या मैं थिंक ऐसे हॉस्पिटल्स अगर आज और कुछ खड़े हो जाएं तो शायद ये बीमारी जड़ से भी इरेडिकेट हो सकती है. बहुत बुरा हाल है. whenever you come here it's like flooded with people. There have to be some more hospitals like this who can take this initiative forward and ensure that cancer is eradicated. How was your experience to interact with the children who suffer from diseases? What should I say? मैं जब यहाँ पर आई मैं बहुत इमोशनल हो गई बच्चों को देखकर. एंड द किड्स आर अमेजिंग एंड इतने हाई स्पिरिट हैं, इतने पॉजिटिव हैं, इतनी हाई एनर्जी है उनमें. और वो इस डिज़ीज़ में भी इतने अच्छे से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, पॉजिटिव हैं. मतलब मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. और मुझे ये सीखने को मिला कि इतने प्रॉब्लम्स में भी आप कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं. सो बहुत अच्छा लगा मुझे. एंड मज़ा आ गया बच्चों को देखकर यहाँ पर. और क्या मोटिवेशन मिलता है और क्या सीखने को मिलता है जब आप इस तरीके से लोगों से मिलते हैं, या छोटे बच्चों से या बड़ों से, जब आप पेशेंट से मिलते हैं? जी सीखने को मिलता है क्योंकि ये बच्चे इतने मतलब कैंसर एक बहुत बड़ी डिजीज़ है. एंड वो जो पेन है उसका वो सिर्फ वही जानते हैं. एंड उसके बावजूद भी वो इतने पॉजिटिव हैं, इतने एनर्जेटिक हैं. तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है. हम आम जिंदगी में रहते हैं, हम फिर भी इतने स्ट्रेसफुल रहते हैं. बट ये बच्चे तो इतने डिजीज़ से लड़ रहे हैं फिर भी इतने पॉजिटिव एंड इतने एनर्जेटिक हैं. सो डेफिनेटली. सो अंकिता, जैसे कि इसके पहले भी मैंने पूछा था, बॉलीवुड में आज के दौर में जो है सोशल कॉजेज पे मूवीज, एक तो वैसे कंपनियों में भी कैंसर पे तो बहुत ही कंपनी, बिकॉज इट्स अ प्रेशर ऑफ बॉक्स ऑफिस. क्लियरली एनीबडी कैन एक्सेप्ट और नॉट, बट इट्स दैट्स द रीजन. सो आप जो है क्या इस तरह की कोई मूवी बनती है तो उसमें यू विल बी लाइक टू बी द पार्ट ऑफ दैट? बिल्कुल, डेफिनेटली. और आई वुड लव टू डू दैट. एंड मैं कोशिश करूँगी कि देखिए उनका पेन सिर्फ वही जान सकते हैं. लेकिन एज एन एक्टर मैं जितना पॉजिटिव अगर रोल होगा डेफिनेटली उनको इनकरेज एंड मोटिवेट करने के लिए डेफिनेटली मैं करूँगी ये रोल. सो यस. सर, पहले भी हमने आपको बच्चों के साथ देखा, आप उनको प्रोत्साहन करते हो, यहाँ पर भी आप प्रोत्साहन कर रहे थे, तो कितना लगाव है बच्चों से? बच्चे देश का फ्यूचर है दोस्त. एंड वी फॉरगेट, वी इवन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर looks at the youth of the nation. Coming back to the movies, I would like to add something there. Short films हमने भी produce की है on social messages. Cancer को लेकर social message was on cancer. It was on anti-smoking. It एक thought यही है कि समाज तक वो चीज़ पहुँचनी ज़रूरी है. उसके बाद आपने जैसे जिक्र किया नहीं बन रहा है. देखिए, आई एम नॉट अ बिग टाइम प्रोड्यूसर जो मैं कोई बड़ी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, बट शॉर्ट फिल्म्स के ऊपर डेफिनेटली हम काम कर रहे हैं. अभी जस्ट पिछले महीने हमने फेसबुक के साथ ऑफिशियली पार्टनर करके 10 शॉर्ट फिल्म्स रिलीज़ की हमने ऑन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस.
तो देयर इज़ अ मूवमेंट गोइंग ऑन, और आने वाले दिनों में अगर सरकार चाहेगी तो ये हर तरीके से आगे बढ़ सकता है। बिकॉज सी, समाज को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, कैंसर की जड़ तक जाना ज़रूरी है। वाई गेट इन टू दैट जोन दैट यू आर अफेक्टेड फ्रॉम कैंसर, ट्राई एंड इरेडिकेट दैट एट द वेरी फर्स्ट स्टेज, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, उनमें जैसे 10 फिल्म्स हमने रिलीज़ की ऑन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, उनमें 10 में हर तरीके के बड़े बड़े किरदार बड़े स्टार्स ने निभाए हैं। तो इट इज़ नॉट दैट कि वो जुड़ना नहीं चाहते हैं। आई थिंक समबडी हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव टू टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।